Hello everyone, today in this video we are going to start reading of Uncle Podger Hangs a Picture on page number 46. In our previous video we read that how Uncle Podger he took the responsibility to hang the picture, but he creates a curiosity in the house and he engaged the entire family members in that work. But before hanging the picture, he threw the picture, right, and he just broke that frame of the picture. So let's open page number 46 of your book. So this is page number 46 of your textbook, and the first paragraph you can see on your screen here. And in the last video we have read that how Uncle Podger hurt his hand with the glass, right, in order to save the glass of the picture actually when he threw that down. So he got hurt, and he's finding his coat also to get the handkerchief from the coat, but he could not find that because the coat was on the chair where he was sitting on. So please open page number 46, keep a pencil in your hand, and I am going to start paragraph number 1. And when half an hour had been spent in tying up his finger. So in the last video, he got hurt and he was searching his handkerchief. तो आधे घंटे बाद उसको अपना हैंकरचिफ मिला, और उसके लिए भी उसने कहा कि तुम 6 के 6 लोग जो है यू आर अनेबल टू फाइंड माई कोट, राइट. सो आधे घंटे बाद उन्होंने अपनी फिंगर को टाई किया. ही जस्ट टाइंग अप हिज फिंगर, ही बैंडेज दैट विद द हैंकरचिफ, एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, एंड टूल्स and the ladder and the chair and the candle had been brought. He would have another go. The whole family, including the girl and the charwoman. So this charwoman is what? It is you can say the cleaner employed, जो कामवाली बाई है उनके घर की, right? So employed cleaner, काम वाली बाई भी एंगेज हो गई, तो 7 लोग टोटल हो गए. स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, रेडी टू हेल्प होम, रेडी टू हेल्प अंकल पॉजर. ठीक है, अब हाथ में चोट लगने के बाद फिर दोबारा वो शुरू हो गए, एंड सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एक सेमी सर्कल में खड़े हैं उनके आसपास और बिजी हैं, राइट. 2 people would have to hold the chair. अब कहाँ बिजी हैं? 2 people would have to hold the chair, and a third would help him up on it. और तीसरे 2 लोगों ने तो उनको हेल्प किया था जो जिस चेयर पे वो चढ़े थे उसके लिए, और जो तीसरा था उसने हेल्प किया था अंकल पॉजर को, टू वुड हेल्प हिम अप ऑन इट. उस पर चढ़ना था उनको, उसके लिए हेल्प किया, एंड होल्ड हिम देयर, और उनको वहाँ पे पकड़ के रखना था. तो कितना फ़नी इंसिडेंट है, ठीक है. And a fourth would hand him a nail, और जो 4th person was standing there, he would have to hand him over the nail, and the 5th would pass him to the hammer, और जो 5th है उसने उनको क्या दिया? hammer दिया, and he would take hold of the nail and drop it. अब 4-5 लोगों की हेल्प से उन्होंने इतना सा काम किया है सर, कि 2 लोगों ने तो चेयर पकड़ रखी है, उनको चेयर पकड़ रखी है, तीसरे ने उनको चेयर पे चढ़ने पे हेल्प किया है, 4th ने उनको नेल पकड़ाई है, और 5th ने हैमर पास किया. उसके बाद भी उनसे ये काम नहीं हुआ है ठीक से, ठीक है, और जो नेल उनको पास की गई, सो ही जस्ट ड्रॉप्ड इट. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन. अब कहते हैं अरे अब ये नेल गिर गई. एंड ही वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज and grovel for it. Grovel for it means to search for it, right? To crawl or to lie on the ground, right? While he would stand on the chair again and grunt. Grunt means to make a sound, and want to know if he was to be kept there all the evening, कि उसको सारा दिन वहीं टांग के रखोगे क्या, कुर्सी पे ही चढ़ा के रखोगे क्या. So the nail would be found at last.
मतलब अभी सारे लोग जो जिन्होंने उनको पास किया था नेल को और उन्होंने गिरा दिया अचानक से, तो अब वो सारे ढूंढ रहे हैं कि भाई अब नेल गई कहाँ। तो अब थोड़ा टाइम लग रहा है नेल उसको ढूंढने में, नेल को। सो वो ऊपर से ग्राउल कर रहे हैं चेयर पे खड़े खड़े, सारा दिन मुझे चेयर पे ही चढ़ा के रखना है, ढूंढी नहीं जाती नेल। The nail would be found at last, but by the time he would have lost the hammer. अब जब नेल मिल गई है तो क्या हो गया? He would have lost the hammer. अब हैमर नहीं है उसको लगाने के लिए। Where is the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens. Great heavens मतलब it's a word of interjection actually. It's a expression of interjection I would say. That means अरे वाह, 7 of you gaping round there and you don't know what I did with the hammer. कि अरे वाह कितना अजीब है, 7 लोग यहाँ खड़े हैं और तुम लोगों को पता नहीं कि मैंने कहाँ रख दी है हैमर। ठीक है, अब गलती किसकी है? उन्हीं की। इतने सारे लोगों को एक तो उन्होंने बिजी किया है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दैट सेइंग दैट सो मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हियर इज़ हैपनिंग कि 7 लोग उनके आसपास खड़े हैं और एक काम है छोटा सा, एक पिक्चर को दीवार पर टांगना है। ठीक है, और कभी वो नेल गिरा दे रहे हैं, कभी खुद को हर्ट कर दे रहे हैं, कभी हैमर गिरा दे रहे हैं, और फिर अगर कुछ गुम हो जाता है तो उन्हीं को चलाते हैं कि अरे व्हेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवंस, 7 of you gaping around and you don't know what I did with the hammer. So अभी प्रॉब्लम किसकी है? उन्हीं की, लेकिन वो चला किसी और पर है, फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल रहे हैं, दैट ही इज़ अनेबल टू डू दैट जॉब, राइट? Next paragraph is we would find the ham for him and then he would have lost the sight of the mark. अब जो speaker है, narrator, he is saying us that somehow we managed to get the hammer once again, right? And जब तक हमने उनको hammer पकड़ाई तब तक जहाँ पे उन्होंने मार्क किया था कि यहाँ इस पॉइंट पे उस पिक्चर को टांगना है, मीन्स नेल को वहाँ पे हिट करना है, तो तब तक उन्होंने वो मार्क, ही हैज़ लॉस्ट दैट मार्क, राइट? वेयर द नेल वॉज टू गो इन एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर। और हम लोग भी उनके पास में बिसाइड हिम मीन्स उनके पास में चेयर पे खड़े हो, कोई एक एक करके देखने लगे कि अरे कहाँ गया निशान, कहाँ गया निशान, राइट? एंड सी if we could find it and we would each discover it in a different place. और उस दीवार पे इतने निशान थे कि हर कोई, जितने लोग भी वहाँ पे उनके साथ उनकी चेयर पे खड़े होकर ढूंढ रहे थे उस निशान को, सो हर किसी को ही मतलब लग रहा था कि नहीं ये है, अरे नहीं ये है, अरे नहीं है, इतने निशान उन्होंने लगा दिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो मार्क था दैट वाज मिसिंग एक्चुअली, द राइट मार्क वाज मिसिंग एंड नोबडी वाज able to get the right mark, right? And he would call, this is very interesting now, and he would call us all fool, one after another, and let us go get down. And he would take the rule and remeasure and find what he wanted, half 31 and 3/8 inches from the corner, and would try to do it in his head and go mad. ठीक है, तो अब when they are struggling, when they all are struggling, all the 7, they are struggling for getting the mark on the wall, right? So he is scolding them again, right? He is saying them fool. He would call us all fool here, right? कि सभी मूर्ख हो, तुम इधर ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो, this is not the right mark. One after another they all let down, right? And फिर अंकल पॉजर ने क्या किया? He take the rule, he take the measurement tape you can say or the ruler, and he remeasured and find that he wanted, अभी उन्होंने एक measurement किया कि 31 and 3/8 inches from the corner, and would try to do this in his head. ठीक है, तो उन्होंने ये कैलकुलेशन जो भी मतलब मेज़रमेंट किया कि इतना इंचेस होना चाहिए, इतना इंचेस होना चाहिए कॉर्नर से, उन्होंने किसी को बताया नहीं और ख़ुद ही उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड गो मैड, और उसी चीज़ को भूल गए, फिर दोबारा भूल गए कि कितना मेज़रमेंट था और कहाँ पे उनको वो मार्क लगाना था, राइट? सो अब देखो कितना कन्फ्यूज़न है,
work is only to that's of 10 minutes, you can say, but he created lot of fuss, he engaged a lot of people in that work, and moreover he's shouting on them instead, saying them thanks or to leave that work because he is not able to do that work properly. So he is shouting on them who are helping. So here in the next paragraph, and we would all try to do it in our heads and all arrive at different result. अब क्योंकि उन्होंने धीरे से सुन लिया था कि कितना कैलकुलेशन बोल रहे हैं वो 31 inches from corner and all that, so सभी के सभी they all are busy in doing the different calculations and doing the different and they just arrived to different results कि different calculations उनका आ रहा है, and sneer at one another. So this word sneer you have to underline. This means just what it is, you can say the mocking smile, बिल्कुल बिना आवाज़ किए जब स्माइल करते हैं हम लोग, सो दैट इज़ कॉल्ड स्नीयर एट वन अनदर, और एक दूसरे को देख देख के हंसे जा रहे हैं। एंड इन द जर्नल रो द ओरिजिनल नंबर विल बी फॉरगॉटन। ठीक है, अब उनके दिमाग में से भी ये बात निकल गई कि कितना मेज़रमेंट उन्होंने भी किया था, तो उस हंसने के चक्कर में जब वो ज़ोर से तो हंस नहीं सकते हैं क्योंकि अंकल पॉजर उनको डांट रहे हैं बार बार, तो अभी वो एक दूसरे को बिल्कुल मॉकिंग स्माइल दे रहे हैं, राइट, स्नीयर कर रहे हैं। एंड जो ओरिजिनल नंबर है कैलकुलेशन का वो उनके दिमाग से भी निकल गया हंसने के चक्कर में। एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेज़र इट अगेन। अब अंकल पॉजर को वही कैलकुलेशन, वही मेज़रमेंट दोबारा से करनी पड़ रही है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम। इस टाइम उन्होंने मेज़रमेंट स्केल नहीं लिया, रूलर नहीं लिया, एक स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग मीन्स एक धागा टाइप, कॉर्ड टाइप समथिंग लिया। And at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at the angle of 45, right? अब old fool who is here is called as old fool, Uncle Podger, right? So इस moment पे he is saying कि जब वो lean कर रहे हैं, lean मतलब वो झुके हुए हैं वहाँ पे chair पे उसको टांगने के लिए, तो उनका जो posture है खड़े होने का उनकी body का, that is making a angle of 45 degree and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach। और जहाँ पहुँच रहे हैं उससे भी 3 inches beyond जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चेयर पे खड़े हैं 45 डिग्री के एंगल में, ठीक है, और वहाँ से भी 3 inches beyond जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तो अनेबल है। What was possible for him to reach? The string would slip। अब इसी चक्कर में वो जो स्ट्रिंग उन्होंने, जो कॉर्ड उन्होंने लिया है वो भी स्लिप हो गए उनके हाथ से। एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, और वो ज़्यादा ऊंचा खड़े हो रहे थे, अपनी टोज़ पे खड़े हो रहे थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और इसी चक्कर में स्ट्रिंग तो गिरी लेकिन साथ में वो खुद भी गिर गए। और गिरे कहाँ पे? ही जस्ट लैंड ऑन द पियानो। अ रियली फाइन musical effect being produced by the sudden with which his head and body struck all the notes at the same time। अब इतनी हैवी बॉडी पियानो पे गिरी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली म्यूज़िक बजने लग गया, बहुत अच्छे नोट्स निकल के आए, राइट। आई होप यू मस्ट नो व्हाट इज़ दिस पियानो। सो हु इज़ द ओल्ड फूल हियर? Old fool is Uncle Podger, right? And why he is called so, this is your homework. You have to find out that why he is called old fool. So we will keep the reading in this video till here. One page is left that we will do in our next video. Thank you very much. Please read the story as it will make you laugh. Thank you very much. Stay safe, stay happy.